Alright, the next email says, and an incident of the London Tube, a tale of a curious and ill-mannered Pakistani uncle. Dear Junaid bhai, I hope this email finds you well. My name is. अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि अगर आपको ईमेल का कंक्लूजन मिल गया है या आपको कुछ हेल्प हुई है तो आप एक कंक्लूसिव ईमेल भी एज अडेंडम भेज सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट वी कैन रीड कि वी नीड सक्सेस स्टोरीज कि हाँ आपने ये कहा था, मैंने ये किया, ये हो गया. सो पीपल विल फील मोटिवेटेड कि हाँ यार इट एक्चुअली वर्क्स. आई विल फील मोटिवेटेड कि हाँ मैं जितनी बकवास कर रहा हूँ किसी को तो काम आ रही है. तो जरा कंक्लूजन भी भेजा करें और सब्जेक्ट पे कंक्लूजन लिख दें बड़ा बड़ा, और फिर जो कंक्लूजन स्पेस और जो आपकी पिछली ईमेल का टाइटल था, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये ईमेल मैंने पढ़ी थी. ओके, तो जरूर भेजा करें फॉलो अप. माय नेम इज एबीसी एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर बट करंटली लिविंग इन द यूके. आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट एंड some thoughts with you, as I deeply admired the way you address social issues with a balanced perspective. The other day I was traveling on the London Tube when an uncle, likely in his mid-40s, entered and sat opposite to me. He was visibly a Pakistani dressed in shalwar kameez. Next to him was a British woman engrossed in her phone. What struck me was his brazen behavior. He rested his elbow on the backrest, leaning over to peer into her phone, as if she was intentionally sharing something with him. Despite her visible discomfort, which included shifting her posture and moving her leg, his actions continued unabated. Unfortunately, this is not an isolated incident. Over the years, I've observed countless instances of similar behavior among some members of our Pakistani community here. From invading personal space to outright inappropriate conduct, it's disheartening to see such actions, especially in a society where respect for privacy and boundaries is fundamental. Being someone who doesn't look typically Pakistani due to my blonde hair and style, I often hear conversations in Urdu from men and women who assume I won't understand. Now that must be funny and, of course, not appealing as well. Their remarks and actions are often inappropriate and reinforce negative stereotypes. I'm gonna look you up on LinkedIn. I wanna see how you look like. I'm against any form of racism or prejudice. However, I can't help but notice how such repeated behavior fuels the frustrations of the locals here. It's not just about individuals, it becomes a reflection of the community as a whole, feeding into the cycle of cultural biases and justifying discriminatory responses, which I was addressing earlier. कि जैसा इनपुट होता है वैसा आउटपुट होता है. This lack of self-awareness and refusal to adapt concerns me greatly. If such behaviors continue unchecked, I fear that they could lead to increased hostility and potentially justify the rising racist attitudes or actions towards South Asians in general. Junaid Bhai, as someone whose voice resonates with so many, I believe you can address this issue in a meaningful way. How do we tackle this cultural gap and instill a sense of accountability within a community? What solutions can we adopt to prevent such behavior and help Pakistanis abroad become better representatives of our culture? I'd love to hear your thoughts, as I believe this is a conversation we desperately need to have. Thank you. So, ये जैसे कि आपने देखा कि email है which is about this girl जो कि seemingly पाकिस्तानी नहीं लगती है, उनको आसपास अपने बारे में कॉन्वर्जेशन सुनने को मिलती है, और फिर ट्यूब में इन्होंने जिस तरह देखा. एक तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आई हैड अ शो इन दुबई, रामी रोज़ होटल. आई वॉज परफॉर्मिंग एट अ बार, स्टैंड अप था, और वहाँ पे मेरा एक एमराती दोस्त था, वो आया, बट ही वॉज इन हिज अटायर, राइट, डिश डाशा में. तो वहाँ पे अलाउ नहीं है. अलाउ क्यों नहीं है? जब एक अरबी सीमिंगली अरबी कपड़े पहन के शराब पी के पोटेंशियली गड़बड़ करेगा, लड़ेगा, तो इट पुट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अरब्स. तो वहाँ पे आप अरबी कपड़े पहन के बार में जा ही नहीं सकते. सेम गोज़ फॉर अ वुमन इन हिजाब. मेरा अबू धाबी में एक जगह परफॉर्मेंस थी, कोर्टयार्ड मैरियट अबू धाबी में. तो उस वक्त तक मेरी वीडियो ज़रा आने लग गई थी, तो लोग पहचानने लगे थे. तो जैसे अब होता है ना कि इफ़ आई जैसे उस दिन मैं पिछली बार मैं राया में था, तो ये खातून का मैसेज मैंने कल पढ़ा कि उधर ही रहे, मैं आ रही हूँ, और मैंने तो उस दिन देखा ही नहीं, पता नहीं वो आई थी कि नहीं आई थी. तो डिफेंस रहा, तो कहीं जाते तो लोग आ जाते. सो मैंने डाला था कि मेरी यहाँ परफॉर्मेंस है. सो दिस गाय टर्न्ड अप विद हिज वाइफ, एंड बिकॉज द वाइफ वॉज इन हिजाब, तो बार में नहीं आने दिया. सेम रीज़न कि अगर पोटेंशियली ये पी के हुल्लड़बाजी करेंगी तो इट पुट्स अ बैड नेम फॉर द अरब्स. तो वो कहते हैं भाई जीन्स और टी शर्ट में आओ, ताकि लगे कि हाँ शायद इराकी हो, वो मिस्री हो, सीरियन हो, वट एवर. सो या दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर इमेज. अब हमारे वाले शलवार कमीज पहन के ही उनको खुजाना है अंदर. शलवार कमीज में तो दे डोंट इवन वेयर अंडरवेयर, तो फिर खुजा क्यों रहे होते हैं? लाइक मुझे समझ नहीं आता. फिर तो एयर ही होना चाहिए ना चीज़ें. दूसरी चीज़ ये कि फिर इस तरह की हरकतें करते ही अपने कपड़ों में हैं, तो वो और जो शायद पहले कोई शक करे कि यार ये पता नहीं पाकिस्तानी है भी, या ये इजिप्शियन तो नहीं है, या ये तो नहीं है, तो शलवार कमीज़ पक्का ही कर देता है.
कि यार ये वही है। दूसरा भाई, हमें पता नहीं क्यों आदत है ताक झांक की, ये हमारा नेशनल गेम है और शायद झांकने की नीयत कोई ये ना हो कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ या देख के आ रहा हूँ, बस ही जस्ट प्रॉब्ली वांटेड टू गेट क्लोज टू हर। फिर अगेन, अब जिस तरह के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं खास तौर पे यूके में, नॉट द बेस्ट वंस इन द वर्ल्ड, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई नीड सम टाइलेनॉल, या आई एम गोइंग, मुझे फीलर आ जाता है, माय नेक हर्ट्स। एसी ऑन है यार, अब अजीब मौसम हो रहा है, पंखा खोलूंगा तो आवाज़ें आएंगी, एसी खोला हुआ है। इस पे लाहौर वाले हंस रहे होंगे, खोलना क्या होता है, हाँ हाँ एसी ऑन होता है, हमारे कराची में ऐसी बोलते हैं। एंड आलू इन बिरयानी इज़ द बेस्ट। एनीवे, सो या बस वो अंग्रेज़ लड़की देखी तो वहाँ अंग्रेज़ तो खुले डुल्ले होते हैं, हमने इनकी फिल्मों में देखा है, तो हम तो वो खुले डुल्ले अपने जैसों के साथ होते हैं। रशीद तेरे साथ क्यों होंगे, तो लहसन की स्मेल आ रही है तेरे से, सरसों का तेल लगा के तू बैठा है, तेरे साथ क्यों खुलेगी डुलेगी वो, भाई होगी खुली डुली अपने माहौल में, पता नहीं यार अजीब। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पिछले ईमेल में भी यही कहा था कि वही चाइनीज़ को रेसिज्म अगर नहीं मिल रही तो उसकी वजह यही है कि उनका इनपुट क्या है। तो सीमिंगली सिमिलरली हमारा जो हरकतें हैं, और दुबई का भी इशू यही था, स्कैम्स तो अपनी जगह थे ही थे, हमारा बिहेवियर भी यही था। मेरी आदत थी व्हेन आई वाज इन द जॉब, तो मैं रोज़ सुबह उठ के गल्फ़ न्यूज़ और खलीज टाइम्स पढ़ता था, तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी हमारे वाले की ही रिपोर्ट होती थी कि जी एक खातून इमाराती जॉगिंग कर रही थी, उनको पीछे से पकड़ लिया, आई डोंट नो। एंड देन ऑफ कोर्स लंबा बड़ा बड़ा नाम लिखा आता है। फिर इसमें लोग ये कहते थे जी खलीज टाइम तो इंडियन चलाते हैं, तो वो अपनी, आपको इंडियन पकड़ा जाता है तो साउथ एशियन डिसेंडेंट लिखते हैं, पाकिस्तानी पकड़ा जाता है तो पाकिस्तानी लिखते हैं। खैर पोटेंशियली ऐसा हो सकता है, बट या। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो ये जैसे अगर मैं अक्सर लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आप भले किसी और मुल्क में हो, अगर आप ये एक देखो, हर लैंग्वेज, बच्ची चेक कर, हर लैंग्वेज में इट साउंड द सेम, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट बता रही होती है। तो जब अगर लिफ्ट में कोई लड़की आई, ठीक है, और आपने स्लीजी से लहजे में अपने दोस्त को कुछ बोला, उसको समझ नहीं आ रही होगी, वो स्लोवाकिया से होगी, बट आपका तर्ज अदायगी जो है वो सब बता देगा कि आप कह क्या रहे हो, कि उसको देख के आपकी टोन चेंज हुई है या उसको देख के। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर मैंने कोई किसी के बारे में बात करनी भी है तो मैंने अंग्रेजी का एक भी लफ्ज़ नहीं यूज़ करना। अगर मैं बोलूँ इसका स्कर्ट चेक कर, तो इसका और कर ही उर्दू था, स्कर्ट और चेक तो मैंने अंग्रेजी में ही बोल दिया। तो ये गलती अक्सर नए ट्रैवलर्स करते हैं, बाहर मुल्क जाके आधी अंग्रेजी में ही बात कर रहे होते हैं। तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि अव्वल तो वह ना करें, अगर करनी है तो आप बोले उसका लिबास देखिए, यहाँ उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगेन, अगर आपका अंदाज़े अदायगी में स्लीज पना है तो वो समझ लेगी। और औरतें वैसे ही सिग्नल फ़ौरन पकड़ लेती हैं, सारे सिग्नल सही पकड़ती हैं औरतें, फिर भी टॉक्सिक आदमी से शादी करती हैं, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो सो या प्लीज़ इस तरह ये अज्यूम ना करें कि अगले को उर्दू नहीं आती होगी। आपको पता है कि न्यूयॉर्क में अगर आप ये भी बोलो ना कि न्यूयॉर्क में और लंदन में कि वो काला आ रहा है, तो काले को पता है कि हमें काला बोलते हैं, तो वो फ़ौरन कॉल आउट करते हैं, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू जस्ट से, क्योंकि इंडियंस और वो आपस में, हम ज़ाहिर है हम कम रेसिस्ट थोड़ी हैं, हमें भी काले को रेसिज्म देना है। तो कहीं कहीं कुछ लोग आंधी बोलते हैं, राइट, ताकि उसको समझ ना आए वर्ड। कुछ लोग, सब ने कोड वर्ड्स बनाए हुए होते हैं कि यार काला नहीं बोलना, इनको पता है कि काला होता क्या है। तो व्हेन यू डिस्कसिंग समवन, लोगों को पता चल जाता है, दे माइट नॉट एक्ट अपॉन इट एंड दे माइट प्रिटेंड कि उनको समझ नहीं आया, लेकिन आ रहा होता है। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना करें। एंड अब इस पर क्या ही वीडियो बनाए यार, ये तरबियत तो घर से होनी चाहिए कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना है। अब मैं तरबियत तो नहीं करा सकता यहाँ पे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है यार। सो या मैं तरबियत तो नहीं कर सकता, लेकिन ओनली एडवाइस कि आपके छोटे छोटे एक्शन जो हैं, इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन फॉर मे बी फॉर अदर पीपल, एंड इन टर्न वो प्रॉब्लम फिर आपको भी होते हैं इन फेसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शंस और नॉट गेटिंग जॉब्स वगैरह वगैरह। सो प्लीज़ इस तरह बिहेव ना करें। आई होप आई हैड मोर टू से ऑन द सब्जेक्ट, बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम जो हम पीछे रेसिज्म की बात कर रहे थे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।